Yes, students, let's discuss. Am I audible to all? Yes, it's blinking. Done. So we are going to discuss about the key of your PT2 question paper. I am having set A first. Which of the following will not be recorded in the books of accounts? So sale of goods we always record, that is a monetary transaction. Payment of salary we record. Purchase of patent is our asset, that is quality of staff we never record in our books of accounts. So this was C. पहले का C है भाई. Second, which is the last step of accounting? इसके बारे में हमेशा confusion रहती है. Few of you have written that analysis and interpretation is the last step. It's wrong. It is communication of information. Again, it was C. ठीक है, after analyzing it, after interpreting it, you need to communicate it to the interested party. So in that case, that is the last step of your accounting process. Which of the following is not true? Let me read all the statements. First, accounting may be influenced by the personal judgment. That is a limitation of accounting. क्योंकि हर बंदा, हर accountant अपने हिसाब से transactions को record करता है. So this is true. Accounting information must be reliable. Reliable का मतलब क्या है? Authenticity check करने के लिए vouchers वगैरह साथ में attach होने चाहिए. So this is also true. Then resignation by a marketing manager is not recorded. ये भी true है because it is not a monetary transaction and we never record it. तो रह गई हमारी D point. Accounting information must be presented in such a way that only account. Yes, ऐसा थोड़ी ना. Non accounting बंदों को भी समझ आनी चाहिए भाई. ठीक है? So this is not true with regard to accounting. D option, third का D है. Name the documents which are considered as the most important basis of recording in journal, vouchers and source documents. Combine लिख दिया था मैंने. So D option है fourth की. Fifth, ledger is a book in which C आएगा. Real भी बनते हैं, account personal भी बनते हैं, nominal भी बनते हैं. ठीक है, real like fixed asset account हम बनाते हैं, cash account हम बनाते हैं, personal account like you and me. Sonia's account we prepare, Navya's account we prepare. So this is what personal account. Nominal account means rent account, salary account, commission received account. So all the accounts are being covered herein. Sixth question. ये मैंने revision test में भी डाला था शायद. It is a process of totaling of two sides. ये two sides बनी ledger की. दोनों sides का total किया और balancing figure निकाली. Closing balance निकाला. So this process we call balancing. Sixth का D था भाई. Balancing. 7. What is the meaning of overdraft? Like you have overdrawn then your available balance. आपका बैंक में बैलेंस कम है और आपने उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए हैं. It is a liability. ठीक है, it is a liability. C option थी. 8. To which side of ledger accounts are the transactions of receipt side? ये receipt side की transaction है. ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने टू बैंक लिखा, या मैंने यहाँ पे टू सोहन लिखा, सोहन ने मेरे को चेक दिया, ये रिसिप्ट साइड है, कैश बुक की रिसिप्ट साइड है. लेजर की कौन सी साइड पे आएंगी ये ट्रांजैक्शन? ऑब्वियस है, क्रेडिट साइड पे आएंगी भाई. जो चीज कैश बुक में डेबिट साइड पे है वो लेजर की रिवर्स साइड पे आएंगी. सो इट वाज क्रेडिट साइड. 8th का बी करेक्ट था. राइट, आगे चलते हैं. 9. विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स एसेट? ये भी हमने डिस्कस किया क्लास में. इसका 4th था आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल. आपने अपने यूज के लिए खरीदे होते हैं और इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, मींस 1 साल से ज्यादा होती है. सो आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल. आगे चलते हैं. इफ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड, यू शुड ऑलवेज क्रॉस योर चेक्स. बस या अकाउंट पे. ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया था, क्वेश्चन मार्क नहीं आना था, स्लैश आना चाहिए था यहाँ पे. ठीक है. नॉट नेगोशिएबल मींस नॉट ट्रांसफरेबल. ये एक नई टर्म थी आपके लिए. नेगोशिएबल मींस नॉट ट्रांसफरेबल. तो अकाउंट पे चेक कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग क्वेश्चन मार्क दैट हैज बीन मिसप्रिंट इन द पेपर, इट शुड बी स्लैश या और वर्ड होना चाहिए था. ठीक है. मैचिंग वाज आल्सो वेरी इजी. बिल्डिंग इज एसेट. ठीक है जी, पहले का एसेट है, सैलरी एक्सपेंस है, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड, मैं ठीक लिख रही हूं ना? यस, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है. और वाउचर्स बिल्कुल ठीक ही था, वो उसके सामने ही लिखा था रिटर्न डॉक्यूमेंट. ठीक है, इट वाज ए ऑप्शन.
राइट. 11th का ए ऑप्शन वाज करेक्ट. मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस. ठीक है, लगातार बिजनेस चलता रहेगा, उसका टैग वर्ड है. गोइंग कंसर्न का टैग वर्ड क्या है? क्रेडिबिलिटी मींस दैट इज अ टैग वर्ड. कंटिन्यूइंग ऑफ द बिजनेस. यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स कंपैरेबिलिटी. अगर आप एक जैसी पॉलिसीज रखते हो, एक जैसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखते हो, तो आप एक साल का डाटा दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सकते हो. कंपैरेबिलिटी 13th का ए है. 14th का डी है भाई. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ट्रू. पहली तीनों लाइनें ट्रू है कैश बुक से रिलेटेड. Only credit transactions are recorded in it. Credit transactions we never record in the cash book, you know. Only the cash transactions we record. So this is not true with regard to cash book. अगला फिर से यही था, which is not true. Bank account is a real account. True. Bank really है. Real. Debit what comes in, credit what goes out. And bank is your asset. Bank balance is your asset. Bank account is a real account. Cash account is also a. If bank is a real, obviously cash भी real है. This is also true. A contra entry is one which does not require posting into ledger. Why? This is also true. क्योंकि contra entry कैश बुक की दोनों साइड पे आ गई है, तो लेजर में थोड़ी ना जाएंगी. यहीं पे आपने कैश कॉलम में भी डाल दिया, बैंक कॉलम में भी डाल दिया. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इसका डी था भाई. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस. बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी होता है जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस आता है. So this is not true. Had I been writing here cash column of cash book always shows the debit balance, तो करेक्ट होता है, क्योंकि कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. ठीक है, बैंक कॉलम का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. सो दिस वाज नॉट ट्रू. डी वाज करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 15. इसमें बताओ मेरे को ऑड अकाउंट. गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. ये तीनों चीजें आपने किसी को पे नहीं करी, आपने अपने लिए एक लॉस दिखाया या एक्सपेंडिचर दिखाया. सो रेंट पेबल इज योर लायबिलिटी. ठीक है, तो दैट वाज ऑड मैन आउट, दैट वाज ऑड फिगर. मैचिंग 17th का ए है. मैचिंग 17th का ए है. कैसे? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड पेड द अमाउंट बाय चेक. उसने सामान लिया और पैसे भी दे दिए, तो सेल मानेंगे ना, ड्रॉइंग्स थोड़ा ना मानेंगे. सोचो, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से सामान लिया और पेमेंट भी कर दी, तो सेल है ना. मैं ये मान के चलूंगी जैसे मैंने कस्टमर को सामान बेचा वैसे मेरे प्रोप्राइटर को सामान बिक गया. सो फर्स्ट का सी बनना था. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फर्म अनडाउटेडली ड्रॉइंग. सेकंड का डी. रिडक्शन इन द सेल प्राइस ड्यू टू पुअर क्वालिटी, रिबेट है. थर्ड का ए. और फोर्थ का बी ही बचा. Received an order for rupees 50,000 for supply of goods is not to be recorded in journal, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ, कैश नहीं रिसीव हुआ, ना ही आपने अभी तक सेल करी है. So it is not to be recorded in the journal. 17th का ए था. यहाँ पे गलती होने के चांस थे क्योंकि एक नया पॉइंट मैंने डाला था. Goods withdrawn by the proprietor for personal use but he paid cash या चेक. That is not drawing, that is sale. हम ये मान के चलेंगे जैसे मैंने बाहर वाले कस्टमर को सामान बेचा है वैसे ही मेरा प्रोप्राइटर सामान ले गया. ठीक है, अगला बी था भाई. प्रॉफिट 2,60,000 प्रॉफिट निकालना था. आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखा है, आपने क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का कंपैरिजन करना था. डिफरेंस वाज प्रॉफिट. क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा आई होगी ओपनिंग के कंपैरिजन में, सो डिफरेंस वाज प्रॉफिट 2,60,000. It is a document to be filled when checks, cash or drafts are to be deposited. ये आपने वाउचर की फाइल भी बनाई है. पेन स्लिप, जब आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो या चेक जमा करवाने जाते हो या ड्राफ्ट जमा करवाते हो तो आप पेन स्लिप फिल करते हो. A check received and paid into bank on the same day is recorded in the bank column of cash book. ये आपको चेक मिला और ये आपने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया. एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पर्सन्स नेम. So it is to be recorded in the bank column of cash book. On the debit side भी साथ में लिख सकते थे, but he has not mentioned. Which of the following item is not recorded in the cash book? Credit sale. D option was correct. Was very easy again. When a check is received from a customer and it is deposited into bank for collection, but ultimately returned dishonored, the customer account will be debited. Customer को दोबारा से अपना डेटर बना लेना है क्योंकि वो चेक क्या हो गया है? डिसऑनर. So come at assertion and reason. 13th का बी है. दोनों करेक्ट हैं. ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सुनो क्यों.
और 23rd का बी है। कैसे? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है सबको पता है, इट इज द सम टोटल ऑफ बीआर एंड डेटर्स। बीआर एंड डेटर्स, सम टोटल ऑफ बीआर एंड डेटर्स। 23rd करवा रही हूं मैं। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो पैसा जो आपको मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपने लोगों को उधार में सर्विसेज या गुड्स बेची है। और नीचे क्या लिखा? ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ। पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों लाइनें करेक्ट है। सो बी ऑप्शन वाज करेक्ट। 23rd में बी। 24th का ए है। कैसे? देखो, according to dual aspect concept, every transactions enter into the business has two aspect। करेक्ट है? डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और विद इक्वल अमाउंट। करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एज पर माई की इट इज ए। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, और सेकंड वाली लाइन पहली वाली लाइन को सपोर्ट करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी एडेड टू द कैपिटल। ठीक है, बिकॉज इनकम है ना। ठीक, इन चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लिख भी दिया, आगे मैंने लिख भी दिया बिकॉज इट इज एन इनकम, अगेन इट इज ए। ठीक है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं। क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं भाई? व्हेन वी रिसीव और व्हेन वी पे। Credit vouchers are prepared when cash payments are made. ये है। Debit vouchers are prepared when cash payments are made. कह रहा है yes, when cash payments are received, when cash is received. So A is incorrect and R is correct. D option आना था इसका। 26 का D। आपने पढ़ा नहीं ना? Debit vouchers are for payment. Debit vouchers are for। और जब मैंने सिखाया था, मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट का रूल माइंड में रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, क्रेडिट ऑल इनकम। सो क्रेडिट वाउचर्स आर ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड व्हेन यू रिसीव कैश, राइट? सो दिस वाज डी। अगले का सी था। क्यों सी था? हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्स का मतलब डॉक्टर्स एज कंसल्टेंसी फी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। करेक्ट है। फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। नो, इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। सो दैट इज, ये मैंने पेपर में रिवीजन टेस्ट में भी डाला। ठीक है, सो दैट रीजन इज इनकरेक्ट एंड असर्शन इज करेक्ट, सो इट इज ए। 28 चेक रिसीव फ्रॉम श्रेया विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चेक रिसीव फ्रॉम श्रेया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्रेया होगा। करेक्ट है। Received check should be assumed as deposited into bank in the absence of any information regarding the deposit। कहता अगर खुद कुछ नहीं कहा होता तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिन चेक मिला है उसी दिन ही डिपॉजिट हो गया होगा। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, इट इज ए। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is incorrect? ए है। लाइबिलिटी प्लस एसेट कभी भी कैपिटल के बराबर नहीं होता। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट के बराबर हो सकता है, लेकिन लाइबिलिटी प्लस एसेट कभी भी कैपिटल के बराबर नहीं होता। बाकी सारा ठीक था। 30th, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी नहीं, इस सेट में ठीक था। हाँ, उधर जीरो मिस हो गई थी दूसरे सेट में। कैपिटल आना डी। एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस कैपिटल होता है भाई। अमाउंट मैंने पूछी नहीं थी। केस स्टडीज के बाद आप टिक करो। 31st का बी। इसके बारे में मेरे को कंफ्यूजन थी, देन आई सर्च फ्रॉम नेट। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे 9% लगता है। मैक्सिमम बच्चों ने सी ही लिखा था। इन माई की आई फर्स्टली मार्क टिक ऑन बी, दैट वाज 6%, लेकिन फिर मैंने सारे पेपर दोबारा देखे, इट वाज 9%। आई चेक फ्रॉम नेट आल्सो, इट इज 9% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। प्रॉफिट अर्न्ड बाय प्रेम, ए 175। 34th का ए 775। Mathematical expression defining the comparative relationship between assets and liabilities accounting equation, this is B। 36 का opening entry C। 37th matching का A। 38th का B। B 80,000 आना। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज 80, 1 लाख में से 20,000 माइनस करके लाइबिलिटी। अगले में फिर से लाइबिलिटीज था C 4,40,000। रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, चाहे पैसा मिल गया है चाहे मिलने वाला है, दोनों ही रेवेन्यू मानी जाएंगी, बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। डी। 40th का डी। हु prepares a debit note? Purchaser, B। 42nd, under which accounting principle quality of manpower is not recorded in the books of accounts? Money measurement, because it can't be measured into money।
43rd विनोद वाले का लॉस 11,000 ए। 44th का मशीनरी अकाउंट, वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए जो पे करते हैं मशीनरी में डेबिट होते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है, दैट वाज ए। 45th का ए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ सेट बी। सेट बी, let's see first. It is an art of recording the books of accounts, the monetary aspect of commercial and financial transaction, name it bookkeeping. जब बुक्स की बात आ गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आ गई, तो इट इज बुककीपिंग। सी ऑप्शन वाज करेक्ट। Which of the following will not recorded in the books of accounts? Punctuality of the employees. बाकी सारी चीजें हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। सो सी ऑप्शन, सेकंड का सी। हाँ, थर्ड में थोड़ा सा डाउट था मेरे को, एक बच्चे ने बुलाया भी था, तो इसमें जो भी आपने किया ए को छोड़ के बी सी डी तीनों ही करेक्ट थे। क्वेश्चन वैसे बनना चाहिए था आइडेंटिफाई द इंटरनल यूजर, गलत प्रिंट हो गया या मैं प्रूफ रीडिंग नहीं सही कर पाई, तो एक्सटर्नल यूजर हो गया वहां पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर क्रेडिटर भी होते हैं, बैंकर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज भी होती हैं। तो ये मैंने सबको क्रेडिट दिया है। अगर किसी ने ए लिखा है तो मैंने क्रॉस किया है, बाकी तीनों ऑप्शन में से कुछ भी लिखा है आई जस्ट करेक्ट, ठीक है। फोर्थ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ, लेजर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स, इट इज अ लायबिलिटी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। रॉबर्ट्स अकाउंट, एक मैंने वर्ड बोला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा मैंने बोला नेचुरल पर्सन, तो रॉबर्ट नेचुरल पर्सन लिखना था ना। जिन्होंने पर्सनल लिख दिया मैंने क्रॉस किया है, बिकॉज इट इज नॉट पर्सनल ओनली, इट इज नेचुरल पर्सनल, राइट। सो इट इज डी, सेवेंथ का डी। एट्थ का ए, इनटेंजिबल एसेट जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती। नाइन्थ का डेटर, सी, नाइन्थ का सी। टेंथ का ए, मैचिंग। 11th का जर्नल, फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज जर्नल, ए। इनकम टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस क्योंकि ये ड्राइंग्स रहती हैं, सी। Which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? Understandability means आपको समझ आ जाता है, कुछ भी vagueness नहीं है, there is no ambiguity, there is no confusion, everything is clear to the reader. So this is what we call understandability. Qualitative characteristic of accounting information है। हाँ, ये दूसरे सेट में भी मैंने डाला था, सेम ही था। 14th, only credit transactions are recorded is not true with regard to cash book. C option is correct. 15th की डी ऑप्शन करेक्ट है। 16th की ए ऑप्शन करेक्ट है। चारों में डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी थी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 17th ऑड आउट निकालना था। मशीनरी फिक्स एसेट है, मोटर वैन फिक्स एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी फिक्स एसेट है, कैश एट बैंक करंट एसेट था, इसलिए वो करेक्ट था, दैट वाज ओड अकाउंट। विनोद वाला इस सेट में भी था, so B option was correct, that was 11,000. 19, receipt, जो आपको मिलती है जब आप फीस जमा करवाते हो, जो एक ट्रेडर कस्टमर को देता है या स्कूल और कॉलेज अपने स्टूडेंट को देता है, तो उसे रसीद कहते हैं, रसीट। इवन एक लैंडलॉर्ड टेनेंट को भी देता है जब वो उसे रेंट जमा करवाता है। 20th का सी, आप बताओ जब अकाउंट पेबल की पेमेंट करेंगे तो कैश भी कम होगा, लायबिलिटी भी कम होगी, एसेट भी कम होगा, लायबिलिटी भी कम होगी, सी। 21st का क्रेडिट सेल्स, 22,000 डी। 22 का सी, द बिजनेस हैज मनी इन द बैंक अकाउंट। अगर आपका डेबिट बैलेंस है, किसका? बैंक का, तो उसका मतलब क्या? आपके पैसे बैंक में पड़े, यू हैव द बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। असर्शन रीजन पे आइए। 23rd का बी, 24th का ए, 25th का सी, 26th का बी, ये मैंने कॉमन डाला था वही कंसल्टेंसी फीस वाला, सी है 27th का। 28th का डी। गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। हाँ, इसके बारे में मेरे को कंफ्यूजन है। असर्शन रीजन 28, जरा देखना, कैलकुलेशन करके देखते हैं। गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस 3000, एसपी 3000 है, फॉर हिज, यहां पे मैंने चेंज करवाया शायद, फिर
इसी क्वेश्चन में था। चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं। बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 20% ऑफ द कॉस्ट, ये ऑलरेडी सेलिंग प्राइस ही दे रखी है भाई, सो द ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड विद ये 120 कहता है। ये सेलिंग प्राइस कैसे बना, क्योंकि 20% प्रॉफिट इसमें क्या हुआ है ऐड, तो मैंने इसकी कॉस्ट निकालनी है 2500 कॉस्ट आई, तो ठीक लिखा उसने। सो द ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड विद 2500। गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट, ए आना चाहिए मेरे हिसाब से। 28 का ए, इट्स नॉट डी, दोनों ही करेक्ट है। जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए सामान ले जाता है तो दैट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, तो मैंने कॉस्ट निकाल ली ना। आपको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है, आप जर्नल एंट्री करते तो सेलिंग प्राइस से नहीं करते, कॉस्ट से करते। जर्नल एंट्री क्या होती, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, नॉट विद 3000 बट विद 2500। सो बोथ वर करेक्ट। ये ए है, मैंने यहाँ पे डी पता नहीं क्यों लिखा, आप देखूंगी मैं ए से चेक किया कि डी से चेक किया। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन, ये भी डी था। लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज ओनली करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग हैं। केस स्टडीज के टिक कर लो। 31st का ए 28 लाख, 32nd का 9000 सी, 33rd का ए 31,000, 34,000 का 33,300। हाँ, अगले में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, एक बच्चे ने मेरे को बाद में बोला भी कि मैम लायबिलिटीज ये लिखी हैं और एसेट कम कैसे हो सकते हैं, जीरो वाज एक्चुअली मिसिंग इन बिटवीन। तो मैंने डिफरेंस ही पूछा था, दोनों का कैपिटल आना था। अमाउंट में एक जीरो मिस हो गया, मैंने तो डिफरेंस ही पूछा था, दोनों सेट्स में सेम था, एक सेट में अमाउंट ठीक प्रिंट हुई, दूसरे में जीरो मिस हो गया, सो इट शुड बी कैपिटल। 35th का कैपिटल। 36 का ए ओपनिंग एंट्री टू ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर ऑफ लास्ट मंथ, सी ओपनिंग एंट्री। लायबिलिटीज की मिसिंग वैल्यू निकालनी थी, ये दूसरे सेट में भी सेम था, 4,40,000। 39 बोथ रेवेन्यू किसको मानते हैं, बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। हु prepares डेबिट नोट, परचेजर, बी ऑप्शन इज करेक्ट इन 40th। 41st में मनी मेजरमेंट। 42nd में क्रेडिट चेक इन हैंड, यहाँ पे डेट का कुछ बोल रहे थे बच्चे। इफ वी रिसीव द चेक डेटेड ऑन दिस, चेक के ऊपर डेट ये लिखी है, एंड सेंड इट टू बैंक ऑन 15। हाँ, अगर आप बाद में चेक भेजते हो, दूसरा छोड़ दो, जब आप बाद में चेक भेजते हो देन इन कैश बुक ऑन 15 सितंबर, यहाँ पे डेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पर क्वेश्चन फिर भी अंडरस्टूड था। 12 सितंबर को तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नो एंट्री ऑप्शन नहीं था, मैंने 12 की जगह वहां पे 15 लिखना था, सो इट इज टू बी डी, क्रेडिट चेक इन हैंड। क्रेडिट चेक इन हैंड ये भी बाद में बच्चों ने मेरे को बता दिया था। अब यहाँ पे भी मैंने चेंज करवाया था, पहली ऑप्शन 4,20,000 थी और वही करेक्ट थी, स्टेटमेंट वाज करेक्ट। पहली ऑप्शन 20,000 नहीं थी, 42,000 थी, सॉरी। 50,000 का 16% करो ना, 8,000 बनेगा, ठीक है। सो बैड डेट्स विल बी डेबिटेड विद सिर्फ 16% मिला, वाज ओनली बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 50,000 का 16% अगर मिला तो 8,000 मिला, बैड डेट्स कितने हुए 42,000। So first option was correct, जो मैंने रेक्टिफाई भी करवाई थी। If you receive 5,000 on behalf of Amit, क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमित, so it was first option correct। और 45th क्वेश्चन मैंने चेंज करवाया था, जिसकी ऑप्शन डी आनी थी, नॉन कैश वाउचर्स। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी रिकॉर्डेड इन विच टाइप ऑफ वाउचर, दिस वाज द क्वेश्चन, मैंने ये सही करवाया था बिकॉज लास्ट क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन द पेपर, राइट। 11th और 45th question were the same, so वो मैंने change करवाया था। Charging of depreciation we will record in which type of voucher, that was non-cash voucher. Yes, now any doubt to the students sitting in the class or to the students sitting at their own places?